Dear students, we are going to start history's first chapter, that is the French Revolution. The French Revolution is known as a landmark in the history of Europe and the world. It led to end of monarchy in France and a new system of governance was introduced. The Declaration of the Rights of Man and Citizen during the French Revolution announced the coming of a new era. The slogan of French Revolution was liberty, freedom and equality, which became important ideas of that new era. In this slide, we are going to discuss about French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family became the king of the France. He was 20 years old and married the Austrian princess Marie Antoinette. When he became the ruler, he found an empty treasury because years of wars and an extravagant lifestyle had drained the financial resources of France. The cost of maintaining court at the immense palace of Versailles was one of the biggest problems. To maintain court, he took more than 2 billion livres loan. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than a billion livres to our debt. Due to this situation, credit lenders of the state began to charge 10% interest on loan. अब 1774 में लुइस 16 जो कि बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, वो किंग बन गए फ्रांस के। 20 साल की उम्र में उनने शादी कर ली एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। जब वो रूलर बने, उन्होंने देखा कि उनकी जो ट्रेजरी है वो पूरी खाली है। तो इतना बड़ा साम्राज्य, उसकी पैसा कहाँ गया? तो सारा का सारा पैसा जो था वो खर्च हो गया था वॉर्स पर और उनके जो लाइफस्टाइल था उसको मेंटेन करने पर। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कोर्ट, जो कि बहुत बड़ा पैलेस, दैट वाज द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, उसको मेंटेनेंस, उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और जिसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने 2 बिलियन लिवर्स जो है लोन भी लिया था। अब लुइस 16 वॉर्स में भी इन्वॉल्व थे। जब लुइस 16 ने अमेरिका की हेल्प की थी ब्रिटेन के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को कैप्चर कर लिया था और फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया कि उसकी 13 जो कॉलोनीज है जो ब्रिटेन के अंदर है उनको फ्री करवाने के लिए। क्योंकि और इस सब कुछ करने से फ्रांस को कोई फ़ायदा नहीं मिला था ज़्यादा, उल्टा उनका नुकसान ही हुआ था। लेकिन बस ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी और उसकी वजह से फ्रांस पर और कर्जा चढ़ गया था और क्राइसिस में आ गए थे। जो क्रेडिट लेंडर्स थे, यानी जिनने पैसा दिया था फ्रांस के लोगों को, फ्रांस की गवर्नमेंट को, उस पे वो भी उस पे 10% इंटरेस्ट लगा रहे थे। मतलब जो लोन प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाया जा रहा है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्रांस गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा रिटर्न में आता था वो सारा का सारा पैसा उनका इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता था। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि क्या हुआ कि फ्रांस के जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे वो उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, दैट दे वाज नॉट एबल टू मेंटेन देयर आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, एंड दैट इज व्हाई व्हाट दे वर डूइंग, दे वर आस्किंग दैट नाउ स्टेट विल इन्फोर्स मोर टैक्सेस। अब लोगों के ऊपर और टैक्सेस लगाए जाएंगे और जिसकी वजह से लोग जो हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा और उनमें एक एजिटेशन की भावना आ गई कि हम लोग अब सरकार के खिलाफ जो है बोलेंगे। तो लेवर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। लेवर्स और यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस एट दैट टाइम, it livres was the currency of France at that time, जो कि which was discontinued in 1794.
Here we are going to discuss about the structure and social status of French society in 18th century. So, in the 18th century, French society was divided into three estates. First estate, clergy class; second estate, nobility class; and third estate, people. Uh, in first estate, clergy class, members of this estate had vast land and wealth. They were exempted from paying tax and enjoyed certain privileges by birth. Second estate is nobility class. Members of this estate also enjoyed privileges by birth and were exempted from paying tax. They enjoyed feudal privileges such as extraction of feudal dues from peasants. The third estate includes businessmen, lawyers, merchants, peasants, artisans, landless labor, servants. Members of this estate had very few privileges and had to pay taxes. Peasants were important part of this population. Only a few of them owned land. 60% of the land cultivated by peasants was owned by nobles and rich members of third estate. They served lords in army and in construction work. सो हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा था फ्रेंच सोसाइटी का कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी डिवाइड थी तीन में, यानी क्लर्जी में, नोबेलिटी में और थर्ड एस्टेट में. जो टैक्स पे करने का सारा बर्डन था वो थर्ड एस्टेट में था, और जबकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वालों को प्रिविलेजेस मिलते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ. उनको कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता था. और जितना भी लैंड था, मैक्सिमम लैंड जो था वो नोबेलिटी या क्लर्जी क्लास का था. बहुत ही फ्यू पीपल थे जो थर्ड एस्टेट वाले जो रिच थे या जिनके पास अपनी ज़मीन थी. सारा का सारा काम जो है वो थर्ड एस्टेट को ही करना पड़ता था, जिसमें जिसमें लॉर्ड्स को सर्व करने की भी बात आए, अगर आर्मी में रिक्रूट होने की बात है तब भी थर्ड स्टेट वाले, या कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो कहीं पे वहाँ पे भी थर्ड स्टेट वाले मेंबर्स ही इंक्लूड किए जाते थे. Here we are going to discuss about the taxes levied during that period. Tithes tax was introduced, tally tax was introduced. Tithes tax was levied by the church, comprising 1/10 of the agriculture produce. The church too extract its share of taxes from the peasants, and all members of the third estate had to pay taxes to the state. A teletax, a teletax was directly paid to the state, and a number of indirect taxes was levied on the articles of everyday consumption like salt, tobacco. So the all burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. तो टैक्सेस, कौन से टैक्सेस की बात की हमने? टीथेस टैक्स और टेले टैक्स. टीथेस टैक्स वो टैक्स है जो चर्च इम्पोज करता था कि भाई मेरा 1/10 शेयर बनता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का. जो भी आप प्रोड्यूस करते हो, जो पीजेंट्स आप हैं, आप जो भी प्रोड्यूस करते हो, आपको उनमें 1/10 शेयर देना पड़ेगा, और पीजेंट्स उसको पे भी करते थे. और दूसरा टैक्स टेले टैक्स जो डायरेक्टली स्टेट को पे करना पड़ता था. और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, टोबैको, सॉल्ट, जो एवरीडे नीड्स वाली चीज़ें होती हैं उन चीज़ों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे. और इस तरह से क्या था, सारा का सारा बर्डन जो था टैक्सेस का, वो सारा का सारा बर्डन आ गया था थर्ड एस्टेट अकेले पे. इसको टैक्स सिस्टम को आप देखो आज के टाइम से, आज के सिनेरियो से आप किस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि आज कौन से टैक्सेस हम स्टेट को पे करते हैं. जैसे आज की बात करें तो नमक है, सॉल्ट पर हम गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन यहीं पे टोबैको जैसी चीज़ें हैं या ये ड्रिंक्स जो हैं, ये इन इन चीज़ों पे टैक्स लगाया जाता है स्टेट की तरफ से, और लोग जो हैं इन चीज़ों पे टैक्स देते भी हैं, पर नमक पे टैक्स हमारे कंट्री में नहीं लगता है.
Now, the next problem which the French people were facing was the struggle to survive. During 1715 to 1789, the population of France increased rapidly from 23 million to 28 million. This led to rapid increase in demand for food grains, but the production did not increase. The price of bread rose rapidly. It was the staple diet of the majority. Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages. Their wages did not keep pace with the rise in prices, so the gap between the rich and the poor widened. It became worse when bad weather conditions reduced the harvest. This frequently created a subsistence crisis. नो व्हाट हैपन क्या 1715 से लेकर 1789 तक देयर वाज द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन और जिसकी वजह से द there was increase in demand of food grains and but the supply chain was not good at that point of time और उस पीरियड पर जैसे हम यहाँ पर देखें तो हम लोग की स्टेपल डाइट है लाइक वी यूज टू ईट राइस व्हीट पल्सेस वेजिटेबल्स हम ये चीज़ें खाते हैं और वो लोग वहाँ पर ब्रेड खाया करते थे तो ब्रेड वहाँ की स्टेपल डाइट थी जो बहुत महंगी हो गई थी और वहाँ के लोग जो है इवन ब्रेड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अगर हम वर्कर्स की बात करें तो उनके जो ओनर्स थे वो उनको वही सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे जो उनको वो पहले प्रोवाइड कर रहे थे विद द इंक्रीज इन प्राइस मार्केट की प्राइस जो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी उसके हिसाब से उनको सैलरी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी जिसकी वजह से जो वहाँ फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे या जो भी वर्कर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो गई थी जिसकी वजह से फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गया था वो व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस it is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बेसिक जो जीने के सलीके हैं हम वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हमारे बेसिक जैसे हम बेसिक लाइवलीहुड किसको बोलते हैं फूड क्लॉथ एंड शेल्टर तो मतलब वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे जितनी उनकी सैलरी थी उसके साथ In this slide, we are going to discuss about a growing middle classes envisages an end to privileges. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food security. But they lacked the resources and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. This was left to the groups of the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas. So there was the emergence of middle class. In the 18th century, a new social group emerged who were known as middle class. They had become rich by expanding of overseas trade and manufacturing goods. In addition to merchants and manufacturers, there were lawyers and administrative officials who were educated. They believed that no group of society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. तो इसमें 18th सेंचुरी में क्या हुआ हमने देखा कि पहले थर्ड स्टेट जो थी थर्ड स्टेट में पूरा बर्डन जो टैक्सेस का था टैक्सेस का सारा बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट पे था प्लस प्रॉब्लम फूड सिकेर्सिटी की भी आ गई थी राशन कम हो गया था इवन इतने सोर्सेस के बावजूद भी
अब ये था कि अभी भी वो अपना सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर जो था उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला पा रहे थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लेकिन कई ग्रुप्स ऐसे थे थर्ड स्टेट में जो थोड़े पढ़े लिखे भी थे, जो जिनके पास नए आइडियाज़ भी थे। अब नए अब इमर्जेंस जब हुआ, मिडिल क्लास एक नया एक सोशल ग्रुप निकल कर आया जिसका नाम था मिडिल क्लास। इनका ये था कि अब ये लोग रिच कैसे हुए? ये लोग रिच हुए जैसे इनने ट्रेड करना स्टार्ट किया, गुड्स कई तरह की चीज़ें जो हैं वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ कुछ लोग जो थे वो लॉयर्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। वो पढ़े लिखे लोग थे और वो लोग ये भी बिलीव करते थे कि सोसाइटी में जो भी हो वो किसी को सिर्फ वो स्कूल में पैदा हुआ है उस बेस पे उनको प्रिविलेज ना दिया जाए, बल्कि जो भी सोशल पोजीशन हो किसी भी इंडिविजुअल की वो उसके मेरिट के बेस के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। अब इसमें खाली इनका ही नहीं, फिलोसोफर्स जो है मिडिल क्लास के फिलोसोफर्स थे उनका भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन एक्सपैंडिंग न्यू आइडियाज़। वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। In the emergence of the middle class, philosophers played a very important role in spreading the ideas of freedom, equal laws, and opportunities for all. Philosophers like John Locke, Jean-Jacques Rousseau, and Montesquieu considered the middle class was responsible for revolution. John Locke, in his book Two Treatises of Government, criticized the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried forward the idea, proposing a government based on social contract between the people and representatives. Rousseau, in his book The Social Contract, argued the idea that monarchs were divinely empowered to legislate, as he asserted only the people who were sovereign had all the powerful right. Rousseau carried forward the idea, proposing the form of government based on social contract between people and their representatives. Montesquieu, in his book The Spirit of the Laws, stressed the concept of separation of powers between legislature, executive, and judiciary. His concept of separation of power was a great instrument against the despotic, autocratic rule of French emperor. सो हमने देखा दैट फिलोसोफर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इन द एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। जैसे उस टाइम के बहुत फेमस फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्की, इन सब ने अपनी अपनी बातें कही थी। जैसे जॉन लॉक था ही स्वेली, उसने क्रिटिसाइज किया था कि मोनार्क के हाथ में सारी की सारी पावर नहीं देने, एब्सोल्यूट पावर जो है मोनार्की के हाथ में नहीं देनी चाहिए। रूसो ने इवन ये कहा दैट लोगों के बीच में, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसको दोनों माने, यानी लोग भी माने और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी जो राजा है वो भी माने। मोंटेस्की, उसने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया कि पावर जो है इक्वली डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की। और इस वजह से क्या होगा, कोई भी जब पावर तीनों में डिवाइडेड होगी तो कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इन फिलोसफर्स के आइडियाज का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ा। In this slide, we are going to discuss about the impact of ideas of philosophers. Actually, the Montesquieu has given the idea of separation of power, and USA was the first country where it was implemented. After the 13 colonies declared their independence from Britain,
The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. People discuss the ideas of philosophers generally in saloons, coffee houses, and were spread among people through newspapers and books. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those people who could not read or write. Soon the news spread that Louis XVI had planned to impose further taxes to meet the expenses of the state. This generated anger and protest against the system of privileges. अब इम्पैक्ट क्या कर रहा है फिलोसोफर्स का कि सबसे पहले मोंटेस्क्यू ने जो आइडिया दिया था दैट वाज द सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमारे इंडिया में भी है, जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर्स इक्वली डिवाइडेड हैं एंड देयर इज अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम टू. तो ये सिस्टम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने की 13 कॉलोनीज जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस लिया था ब्रिटेन से. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको राइट्स भी दिए, और ये पॉलिटिकल थिंकर्स जितने भी थे फ्रांस के उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन गई. और जब जो इनके आइडियाज़ थे फिलोसोफर्स के, इनके आइडियाज़ बहुत जनरली डिस्कस होना स्टार्ट हो गए थे कॉफ़ी शॉप्स में, सैलून्स में, हर जगह छोटी छोटी जगहों पे, जहाँ न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में आना स्टार्ट हो गया था इनके आइडियाज़ के बारे में. और इसी दौरान में क्या होता है कि लुईस 16 जो है वो अभी और प्लानिंग करता है कि भाई मैं और टैक्सेस इम्पोज करूँगा, कि स्टेट जो है और टैक्सेस इम्पोज करेगी. और ये चीज़ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई. दे वर फुल्ड विद एंगर. दे वांटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, कि ये प्रिविलेजेस के सिस्टम के अगेंस्ट बोलना ही पड़ेगा. और इस तरह से एक कह सकते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी.